Hello students, so today let us begin with the second chapter, New Kings and Kingdoms of History, grade 7. In the last year, that is in your grade 6, you might have learnt about Mauryan dynasty, Gupta dynasty, Satavahanas and the dynasties which ruled in the south, that is Pallavas, Cholas, Cheras. Now today we'll learn about the dynasties after 7th century. Many new dynasties emerged after the 7th century. Your map 1 shows the major ruling dynasties in the different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th century. If we look at the map, after 7th century, many new dynasties emerged. So here they have described about the new dynasties between the 7th and the 12th centuries. Those dynasties were Chahmanas, Gurjar, that are called as Pratiharas, Chandelas, then Parmars, Rashtrakutas, Cholas, Cheras that ruled from Kalinga, then several other dynasties like Palas. So remember this map, from where did they rule. Moving further, the emergence of new dynasties. Now, by the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts, and provide them with military support. As samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwar, that is the great lord of a circle or a region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. अगर 7th सेंचुरी में देखें, 7th सेंचुरी तक बहुत सारे बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ थे. वो क्या करते थे, वो किंग के अंडर रूल करते थे. किंग उनको एक्नॉलेज करता था कि ठीक है, आप हमारा पार्ट हो, आप सबऑर्डिनेट हो या मुझसे थोड़ा एक लेवल नीचे हो. एंड दीज सबऑर्डिनेट्स उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते थे, प्रेजेंट्स लेके जाते थे. फिर एक्सपेक्टेड था कि वो जब भी कोर्ट मीटिंग हो तो कोर्ट मीटिंग में प्रेजेंट हो, एंड मिलिट्री सपोर्ट, जब भी वॉर हो तो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें. जैसे जैसे समांतास की पावर और वेल्थ बढ़ती गई, उन्होंने अपने आप को महासमांता या महामंडलेश्वर डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया था. महामंडलेश्वर इज़ द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की ग्रेट लॉर्ड. एंड समटाइम्स काफ़ी बार ये भी हुआ कि ये महासमांतास थे या समांतास थे, उन्होंने अपने लॉर्ड से या अपने किंग से इंडिपेंडेंस मांगी थी. One such instance was that of Rashtrakutas in the Deccan. Initially, they were the subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, that is, the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as the Kshatriya, even if he was not born by birth. एक बार ऐसा ही इंसिडेंट जहाँ पे एक महासमांता ने क्या किया, अपनी महासमांताशिप छोड़ दी एंड देन उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया. एक इंस्टेंस यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है कि डेक्कन के राष्ट्रकूटास का. इनिशियली ये जो राष्ट्रकूटास थे, दे वर द सबऑर्डिनेट टू चालुक्य डायनेस्टी जो कर्नाटका से रूल करती थी. मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, एक डंटी दुर्गा करके राष्ट्रकूटा चीफ था. उसने क्या किया, अपनी चालुक्य ओवरलोड कर दी. उसने मतलब फेंक दी कि ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी अंडर दिस चालुक्य. और उसने एक रिचुअल परफॉर्म की, जिस रिचुअल को उन्होंने हिरण्यगर्भ करके नाम दिया, दैट इज़ गोल्डन वोम. ये रिचुअल ब्राह्मण्स के द्वारा परफॉर्म की गई थी और इसको ऐसा माना गया था कि इंसान का रीबर्थ है, एंड रीबर्थ इनटू द क्षत्रियस, भले ही वो क्षत्रिय में बॉर्न नहीं हुआ हो. नाउ क्षत्रियस, एज वी ऑल नो, 4 वर्णस ऑफ एंशिएंट टाइम: ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, देन वैश्यस एंड शूद्रस. तो बॉर्न वो या तो वैश्य में हुए होंगे या तो शूद्र में, और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ रीबर्थ इनटू क्षत्रिय. In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayurashraman and the
the Gurjar Pratiharas Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. काफ़ी बार ये भी हुआ था कि वो लोग किसी और फैमिली से बिलोंग करते थे, बट दे प्रोवाइडेड मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट द किंगडम्स बनाने के लिए. एक एग्जांपल है कदम्बा मयूराशरमन का, जो जिन्होंने ब्राह्मण बॉर्न हुए थे पर उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ दिया और हाथ में आर्म्स ले लिए एंड देन दे स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम कर्नाटका. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, जो भी एक ब्राह्मण थे. उन्होंने भी अपना सारा प्रोफेशन छोड़ के टुक टू आर्म्स एंड दे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन राजस्थान. If we look at the image here that is given, this is the from Ellora caves, Ajanta Ellora caves, जहाँ पे विष्णु को नरसिंह एज द लायन मैन बताया गया है. और ये काम कब किया गया था? जब राष्ट्रकूटा रूल कर रहे थे. Let us talk about administration in the kingdoms. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था? Many of these new kingdoms adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj, that is Great King or Overlord of Kings, Tribhuvana Chakravartin, that is Lord of Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared powers with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmanas. काफ़ी बार क्या होता था, जो ये नए नए किंग आते थे वो बहुत बड़े बड़े हेवी से टाइटल्स अडॉप्ट करते थे. फॉर एग्जांपल महाराजा अधिराज, दैट इज़ द ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स. दूसरा टाइटल त्रिभुवन चक्रवर्ती, दैट इज़ लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स. भले ये टाइटल अडॉप्ट करते थे पर उनको काफ़ी बार अपनी पावर समानतास के साथ शेयर करनी पड़ती थी, या तो जो एसोसिएशंस थे जैसे कि पीजेंट्स का एसोसिएशन, ट्रेडर्स का एसोसिएशन, ब्राह्मण्स का एसोसिएशन, उनके साथ उनको वो पावर शेयर करनी पड़ती थी. In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes they were claimed as rent due to the lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. और ये हर एक स्टेट में क्या होता था, जो भी रिसोर्सेज किंग को मिलते थे वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू ही मिलते थे. जैसे अगर कोई पीजेंट है तो एक रूल था, वो उसने जितना भी प्रोड्यूस किया उसका कुछ पार्ट उनको किंग को देना पड़ता था. कैटल कीपर्स हो तो मिल्क देना पड़ता था. आर्टिजन्स हो तो वो जो भी बनाते थे वो देना पड़ता था. और काफ़ी बार इन चीज़ों को रेंट भी क्लेम करते थे, बिकॉज किंग क्या कहता था कि ये सारी लैंड मेरी है तो मैं इस पर रेंट क्लेम करूँगा. अगर कोई ट्रेडर्स हुआ तो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था. दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन. 400 taxes. This is an inscription. The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is Veti, taken not in cash but in the form of forced labor or kadamai or land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession of a family property, etc. एक इंस्क्रिप्शन मिला है चोला डायनेस्टी का जो तमिलनाडु से मिला है, वहाँ पे 400 प्लस टैक्सेस का रेफरेंस दिया हुआ गया है. उसमें से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज टैक्स इज़ वेती. ना वेती डायरेक्टली कैश में प्रोवाइड नहीं करते, या तो वो फोर्स्ड लेबर होता है या तो कदमाई होता है जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं. फिर काफ़ी सारे टैक्सेस ऐसे भी होते थे कि जब भी आप घर बनाओ या तो कोई लेडर यूज़ कर रहे हो कि आपको पाम ट्री पे क्लाइंब करना है, उसके लिए आप लेडर यूज़ करें तो उस पर भी आपको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर एक सक्सेशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी हो रही है, पापा से की प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफ़र हो रही है तो उस पर भी उनको सेस पे करना पड़ता था. सो दिस इज़ योर होमवर्क टू फाइंड आउट विच टैक्सेस आर देयर टुडे, विच टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू its people. So this is your one homework which you have to do. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temple and forts. They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in form of plunder and access to land as well as trade routes. ये जो भी किंग को रिसोर्सेज मिलते थे वो किंग फाइनेंस करता था
सके, फोर्ट्स बना सके, एंड काफ़ी बार उसको वॉर्स फाइट करने के लिए भी यूज़ करता था। इन रिटर्न जो भी वेल्थ उससे मिलती थी या जो भी मतलब लूट के मिलते थे, एंड एक्सेस टू लैंड भी की परमिशन मिलती थी और ट्रेड की भी काफ़ी बार परमिशन मिलती थी। ये सारे पैसे उस चीज़ों में यूज़ किए जाते थे। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from the influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. जो भी functionaries थे, जो भी functions थे, वो revenue collect करते थे. Generally उनको recruit किया जाता था कि आप revenue collect करना, आप revenue collect करना, आप tax collect करना. तो ये जो भी टैक्स कलेक्टर्स थे वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से बिलोंग करते थे और काफ़ी बार ये पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, मतलब पापा से बेटे को पास होती थी। और ये आर्मी में भी इक्वल था कि जो जो आर्मी में उनके बच्चे भी आर्मी में ही रहते थे। और काफ़ी बार ये भी होता था कि ये जो फंक्शनरीज है वो किंग के क्लोज रिलेटिव्स होते और उन्हीं को ये पोजीशन दी जाती थी। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। Prashastis contains details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, they were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्तीज मतलब किसी की तारीफ में जब लिखा जाता है तो उसको प्रशस्तीज कहते हैं। तो प्रशस्तीज हमेशा हर बार सही हो वैसा ज़रूरी नहीं होता, बट जनरली 95% ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि किंग को अपने आप को कैसा बताना है उसके बारे में प्रशस्तीज में लिखा गया होता है। जैसे एकदम विक्टोरियस वॉरियर बनना या वेलिएंट बनना। वेलिएंट इज़ ब्रेव। और ये जो प्रशस्ती से 95% ऑफ द टाइम ब्राह्मण्स कंडक्ट बनाते थे। दीज ब्राह्मण्स वर वेरी लर्नड एंड ओकेजनली वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रूलर की हेल्प करते थे। Now here they have mentioned about the achievements of Nagbhat. एक और यहाँ पे प्रशस्ति के बारे में बताया गया है। Many rulers describe their achievements in प्रशस्तीज। आप लोगों ने गुप्ता और समुद्रगुप्त का लास्ट ईयर पढ़ा था। आगे वन प्रशस्ति written in Sanskrit found in ग्वालियर मध्य प्रदेश describes the exploits of Nagbhat, a प्रतिहारा किंग। एक प्रतिहारा किंग था जिसका नाम नागभट्ट था, तो उसने कैसे सबको एक्सप्लॉइट किया होता उसके बारे में बताया था। किंग ऑफ आंध्र सिंधु दैट इज सिंध, विदर्भा दैट इज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा दैट इज पार्ट ऑफ ओडिशा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। मतलब ये सारे उसके मानते थी उससे पहले कि वो प्रिंस भी बन, मतलब जब वो प्रिंस था। उसने चक्रयुद्ध दैट इज़ द रूलर ऑफ कनौज को हराया, उसके अगेंस्ट विक्ट्री करी। ही ऑल्सो डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बंगाल, अनारता गुजरात, मालवा दैट इज़ मध्य प्रदेश, किराता दैट इज़ फॉरेस्ट पीपल्स, तिरुष्का दैट इज़ टर्क, वत्सा मत्स्य दैट इज़ बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ किंगडम, ये नॉर्थ इंडिया। ये सब के अगेंस्ट उसने वॉर मतलब ही वॉन द विक्ट्री। सो ऐसा उन्होंने एक प्रशस्ति बताया है। और जब ये प्रशस्ति बनाते थे द किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, उनको एक लैंड ग्रांट करते थे। एंड दीज लैंड्स वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। जिसको लिए लैंड मिलती थी उनको ये कॉपर प्लेट्स पे लिखा हुआ मिलता था, दैट इज़ दिस लॉन्ग बिलोंग्स टू दिस पर्सन। So we'll continue with this in the next part, that along with land, what other things were given.